Hello students, welcome to our online classes of chemistry, that is the revision class of class 10. And in my previous video lecture, I'll explain about the chemical properties of ethanoic acid and the preparation of ethanoic acid. Today I'll explain about the next chemical property of ethanoic acid, which is reaction with sodium hydroxide, which is also known as caustic soda. When ethanoic acid get react with sodium hydroxide, it break into N positive or negative, and this break into CH3, C double O negative, H positive. Positive comes to negative and negative comes to positive. So it form CH3, C double O, Na and wood. That is the formula of sodium ethanoate. It is also known as sodium acetate. Sodium and now start the uses of ethanoic acid. So first use of ethanoic acid is it is used as a food preservative. आपका जो ethanoic acid होता है उसको हम लोग as a food preservative use करते हैं. How? कैसे? Because in food preservative जब आप अपने घर पे for example like as जब आप pickles वगैरह का formation करते हो तो उसमें मम्मा लोग उसमें ethanoic acid it means acetic acid डाल देते हैं. तो when we add a acetic acid आपका कभी भी पिकल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम कभी भी खराब नहीं होता है. दैट इज व्हाई यू कैन से दैट इट इज यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव. द सेकंड वन यूज इज इट इज यूज्ड टू मेक एंटीसेप्टिक फाइबर. आपका ये एंटीसेप्टिक फाइबर बनाने के फॉर्मेशन में यूज होता है एंड यूज टू अ परफ्यूम. आपका परफ्यूम इंडस्ट्री देयर आर लॉट्स ऑफ परफ्यूम इंडस्ट्री प्रेजेंटेड इन इंडिया. सो इंडिया में जितने भी आपके परफ्यूम इंडस्ट्री होते हैं उसमें ethanoic acid आपका लॉट्स ऑफ क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है, लॉट्स ऑफ क्वांटिटी में आपका यूटिलाइज किया जाता है. सो इट इज यूज्ड इन परफ्यूम इंडस्ट्री. वी आर आल्सो यूज लॉट्स ऑफ परफ्यूम. एंड नेक्स्ट वन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टिक. आपके लिए प्लास्टिक के फॉर्मेशन में भी यूज किया जाता है. एंड द नेक्स्ट वन यूज इज इट इज आल्सो यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ सोप. How? Used in the formation of soap. Because when ethanoic acid get react with ethanol, it form ester, and triester react with sodium hydroxide, it makes soap. So it is used in a saponification process for the formation of soap. Now I'll start on what is saponification reaction. Students, saponification reaction, formation of soap is also an important topic for the board examination. That is why listen carefully how we can make a soap. So saponification, in saponification reaction, the formation of soap is known as saponification reaction. When triester get react with sodium hydroxide, it form glycerol and soap. So formation of soap is known as saponification reaction. The formula of ester is RCOOR, where R is a alkyl group. And what is the formula of triester? There are three esters are combined together. That is a triester. Triester. That is the first alkyl group, C double O. That is the second alkyl group. That is the first alkyl group, C double O. That is the second alkyl group. First alkyl group, C double O. Second alkyl group. So RCOO.
R. So there are three Easters are combined together. That is why we are saying that is a tri-Easter. So students, it is a tri-Easter. Tri-Ester react with sodium hydroxide. It react with sodium hydroxide. Students, the quantity of tri-ester. So there are three esters are present. That is why 3 NaOH. How we can break? It break into 3 Na positive and 3 OH negative, and it break into so that is the positive portion and that is the second one is negative portion. Positive portion always combined with negative portion and negative portion always combined with positive portion. So what is the product are obtained? So there are following products are obtained. Firstly we write the positive part of tri-ester, which is CH2, CH2, and combine the negative part of this positive part. There are 3 OH, which is the formula of glycerol. And there are 3, 1, 2, 3, C17, S35, COO, and 3N. So that is the formula of soap. So this reaction is known as saponification in reaction, and this reaction is also most important topic. Thank you. Have a nice day. Good morning class. Today the topic is array, and in last turn you have understand what is array, how we declare an array, how we initialize an array, and what is 1D array, how we declare 1D array, how we initialize 1D array, and there is an example of searching where you search the element from the array, whether the element exists in the array or not, and then you understand what is 2D array, means two-dimensional or multi-dimensional array. Today we have learned about what are the applications of arrays. In C programming there are mainly 2 applications of arrays, that is sorting and searching. Firstly, we understand what are the means of sorting and what are the means of searching. The means of sorting, to arrange the array elements, in ascending or descending order, known as, to arrange the elements in ascending or descending order, known as sorting. Searching. What is searching? To search the element, in an array according to its index position is known as searching. So you understand, to arrange the array elements in ascending order or descending order is known as sorting, and to search the element in an array according to its index position is known as searching. So
there are three type of sorting: bubble sort, selection sort, insertion sort. There are three type of sorting, that is bubble sort, selection sort and insertion sort. To search the element in an array according to its index position is known as searching. There are two type of searching: linear search and binary search. Linear search and binary search. So you understand the sorting and searching. You understand the sorting and searching. To arrange the array elements in ascending or descending order is known as sorting. There are three types of sorting: bubble sort, selection sort and insertion sort. Searching: to search the element in an array according to its index position is known as searching. There are two types of searching: linear search and binary search. Now we understand bubble sort. For understanding the bubble sort, firstly we declare the array. Data type or return type, array name and array size. Data type, array name and array size. Then if this is the array, then graphically we represent the array. These are the memory locations. So these are the memory locations. These are the memory locations that are A0, A1, A2, A0, A1, A2, A3 and A4. These are the index position of the array. And array, the size of the array is 5, so index position is 4. If the size of an array is n, then the index position is n minus 1. So size is 5, so index position is 4. Now we return the array elements. These are the array elements which are stored in different array index position. Now we understand how bubble sort works. You see in array, this is in descending order. Now we arrange all the element in ascending order. Then firstly we see the loop, that is there are three loops which are used in C programming. The loops are while loop, do while loop and for loop, where we use for loop. And we use for loop, why? Because there are three statements in for loop: initialization, condition and increment. So firstly we see I equal to 0, yes, I less than 2 n minus 1, that is 4, 0 less than 4, condition true. Then I plus plus, we goes to the internal loop, that is j equal to 0, j less than n minus 1, that is 4, the value of I is 0, so 4, j plus plus. Then we compare aj. If aj greater than aj plus 1, then swapping performs. aj greater than aj plus 1, then swapping perform. What is the means of swapping? Swapping means to interchange the value of the location. Now 5 is greater than 4, then it interchange.
And how it interchange? After interchanging, 4 comes here and 5 goes to the 4th place. Then again it compares by 5, then position changes, and now in this case, this type of arrangement, then again 5 compare by 2, 5 is greater, so it interchanges the place. 5 goes to 2's place and 2 goes to 5 place. After that, 1 interchange by 5, then one element is arranged in last position, that is 5. Now we arrange one element, then we goes to again this loop, then the value of I becomes 1 and 1 is also less than 4, then we goes to the j, then again it compares 0 position element with first position element. This position is A0 and this is A1, this is A2, this is A3. Then I value is 1. So 1 minus 1 minus 1 minus 2, 5 minus 2 means it only runs for A0, A1, A2 and A3 position. So it goes to the A0, A1, A2 and A3 position. Because last element is arranged in ascending order, so we need not to worry. Then we go to that, then 3, 4, 2, 1 and 5. After that, we again see, we compare 4 with 2, 4 is greater than 2, then change the position. In last loop, it changes the position, then 3, 2, 1, 4, 5. Now 2 elements are arranged. The value becomes, I value becomes 2. I value becomes 2. 2 less than 4. 2 is less than 4, condition true. I plus plus, then we goes to the j. Here 2 minus 2 and minus 1 minus 3. 5 minus 3 means 2. So this loop comes only 3 times, for j equal to 0, for j equal to 1 and for j equal to 2. It loops only runs 2 times for 0 and 1. So now this case, let us see. We written 3, 2, 1, 4, 5. Now 3 is, check if 3 is greater than 2. Yes, there is a swapping. Then 2, 3, 1, 4, 5. Then again 3 is compared with 1. 3 is greater. Then 2, 1, 3, 4, 5. Now we go, the value increases, that is 3. 3 less than 4, condition true, comes here. 3 minus 1, that is 4, and that is 0. 0 there. For 0 and 1 the loop runs. 5 minus 3, that is 2. So it works only 2 times. Then compare 1 and 2. Then 1, 2, 3, 4, 5. Then the array. Next loop, the condition becomes false and the control goes to the main statement, and thus we find the array in ascending order.
Now you will understand the concept of bubble sort. This is the concept of bubble sort. The next sorting, that is selection sort, will be considerable in next turn. Now you understand 1D array, 2D array, example of 1D array, example of 2D array or multi-dimensional array, and today you have understand the applications of arrays, that is sorting. What is sorting? To arrange the array elements in ascending or descending order is known as sorting. What is searching? To search the element in a given array. If value is found, then value is searched. If value is not found, then value is not searched. Then you understand what is the concept of bubble sort. In bubble sort, a element is compared to all arrays. If the value of element is greater, then it's swapped by next element, and then you find the array in ascending order. This is for this class. In next class, we will understand the selection sort. Thank you, class. Good morning, students. Today we will start our new chapter, Socrates. Students, as I was informed that this chapter was missed, in some section it was taught and in some section it was not taught. That's why I am going to repeat the chapter, Socrates, that is written by Rhoda Parr. Rhoda Parr is a British writer, story writer. She was born in London and devoted her life in service of literature. Here, she is going to narrate in the story a great character, Socrates. In Hindi, we call it Sukrat. The life history has been described by the Rhoda Parr in the story in two parts, part first and part second. As far as Socrates is concerned, he really was a great thinker, a great philosopher, but how he suffered for his philosophy in his life, that is described in the story. In the first part, we see the childhood part of the Socrates. Although he was an ugly boy, yet he was a great thinker, born thinker, and his thinking power inspired him, motivated him to do a great work in Athens. Athens is the city of Greek, यूनान का एक नगर है एथेंस, जहाँ पर सोक्रेटिस यानी सुकरात का जन्म हुआ था. Let us start our story. First part of the story. Socrates lived in Athens. Socrates एथेंस में रहते थे. About 400 years before Jesus Christ was born. जीसस क्राइस्ट के जन्म से, बर्थ से 400 years ago, 400 वर्ष पहले सुकरात का जन्म यूनान के एथेंस नगर में हुआ था. As a boy, he was ugly, undersized and had flat nose and bulging eyes. वो देखने में बहुत ही कुरूप थे, बदसूरत थे और अंडरसाइड, शॉर्ट हेडेड थे, had a flat nose, उनकी चपटी नाक थी, एंड बल्गिंग आइज, और बाहर की तरफ उभरी हुई आँखें थी. बल्गिंग आइज कमिंग आउट ऑफ फ्रॉम द सॉकेट, यानी जो दायरा होता है आँखों का, आउटपिट होती है, उससे बाहर की तरफ निकली हुई आँखें. हिज फादर वॉज अ पुअर स्टोन कटर. उनके पिता एक गरीब पत्थर काटने वाले थे. इट मीन्स ही वॉज born in a poor family. Financially and as far as physical personality, he does not possess a lot. So he was always rather shabbily dressed. As he was a poor boy, that's why he did not look smart. He didn't have smart look. ना बहुत शैबली ड्रेस बने, बहुत शालीनता, बहुत स्मार्ट कपड़े पहन के पर्सनालिटीज दिखा के वो नहीं रहते, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े नहीं पहनते थे. लाइक अदर बॉयज ऑफ हिज एज, अपने युग के अन्य लड़कों की तरह, ही वेंट टू स्कूल, वो भी पढ़ने गए.
he started his schooling, where the most important lesson were music and gymnastics. At that time in Athens, the important subjects were music and gymnastics. तो सुकरात ने भी इन महत्वपूर्ण विषयों यानी संगीत और शारीरिक व्यायाम विषयों की शिक्षा शुरू की, प्रारंभ किया. He also learned some science and mathematics. उन्होंने साइंस और मैथ्स, गणित का भी, मैथमेटिक्स का यानी गणित का भी थोड़ा अध्ययन किया. एंड लिटिल अबाउट द स्टार्स, साथ ही साथ उन्होंने नक्षत्र विज्ञान, तारों का यानी नक्षत्र विज्ञान का भी थोड़ा सा अध्ययन प्राप्त किया. बट नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, लेकिन उन्होंने हिस्ट्री और ज्योग्राफी का बहुत गहरा ज्ञान नहीं प्राप्त किया एज चिल्ड्रन लर्न टुडे, जैसा कि आज के बच्चों को पढ़ाया जाता है. मतलब मॉडर्न एज में हिस्ट्री ज्योग्राफी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के रूप में सिलेबस में प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, ऐसा उस टाइम नहीं था. एथेंस में जिम्नास्टिक यानी शारीरिक विज्ञान, म्यूज़िक यानी संगीत, साइंस, मैथमेटिक्स ऐसे सब्जेक्ट्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी. तो सुकरात ने भी इन सब्जेक्ट्स यानी ज्योग्राफी, हिस्ट्री के अलावा स्टार्स के, मैथ, साइंस के बारे में भी अध्ययन किया, बट स्पेशली उन्होंने म्यूज़िक और जिम्नास्टिक को ज़्यादा ध्यान दिया. दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रिएचर, ये विचित्र छोटा प्राणी, विद शॉर्ट नेक, छोटी गर्दन वाला, एंड प्लेन फेस और समतल सपाट चेहरे वाला, वॉज अ थॉटफुल चाइल्ड, एक विचारवान बच्चा था. मतलब बाय पर्सनैलिटी, बाय फिजिकल चार्म्स, फिजिकल लुकिंग, ही डिड नॉट पॉजेस गुड एंड साउंड पर्सनैलिटी. बहुत अच्छा व्यक्तित्व, सुंदर हैंडसम वाला व्यक्तित्व जो है उनका नहीं था. ही वॉज हिज कंपेनियंस ऑल द टाइम, लेकिन वो विचारवान बच्चे थे. मतलब बचपन से ही उनके अंदर एक क्वालिटी गॉड ने दी थी, टू थिंक क्लियरली, स्पष्ट रूप से हाउ टू थिंक अबाउट हिमसेल्फ, स्वयं अपने बारे में स्व अध्ययन करने की पावर ईश्वर ने उन्हें दी थी. ही वॉज हिज कंपेनियंस ऑल द टाइम, हर समय वो अपने साथियों को, अपने प्लेमेट्स को, अपने क्लासमेट्स को वॉच यानी निगरानी, ध्यान से देखा करते थे, लुक केयरफुली, एंड ऑल द टाइम, एंड अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स टू एस्केप हिज नोटिस. एस्केप मीन्स बच के निकल जाना, है ना, चूक जाना. तो ऐसे अपने संगी साथियों की ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी, कोई भी आदत नहीं थी, कोई भी वर्क नहीं था, कोई भी स्टडी सिस्टम नहीं था जिसको वो प्रॉपरली नोटिस नहीं करते हो या उनकी आँखों से बचकर गुजर जाए. हर चीज़ को वो बारीकी से वॉच करते थे. सोक्रेटिस डिड नॉट हैव अ बिग हाउस और फाइन फर्नीचर. सुकरात के पास बहुत बड़ा घर या बहुत आलीशान फर्नीचर नहीं था. He did not seem to want either wealth or beautiful possession, और उनमें वांट माने चाहत भी नहीं, इच्छा भी नहीं थी कि वो इन चीज़ों को यानी चाहे इधर वेल्थ, चाहे धन की बात हो, इधर ब्यूटीफुल पोजेशन या बहुत सुंदर, यानी यहाँ सुंदरता का मतलब भौतिकवादी पोजेशंस माने साधन, है ना, कि सोफ़ा भी होना चाहिए, ये भी मॉडर्न फैसिलिटीज से सारी चीज़ें अवेलेबल हों, ऐसा वो नहीं. सुख भोगने वाली चीज़ों के प्रति उनका कोई आकर्षण नहीं था. As he grew older, जैसे जैसे वो बड़े होते गए, he began to think very little of bodily comfort, शरीर को सुख प्रदान करने वाली यानी भौतिक सुविधाएं प्रदान करने वाली चीज़ों के बारे में उन्होंने सोचना बहुत कम कर दिया. एंड प्लेजर, और आनंद प्रदान करने वाली चीज़ों के बारे में भी सोचना कम कर दिया. He gave his mind to all that was noble, honorable and just. उन्होंने अपना मस्तिष्क पूरी तरह से किधर को लगाया, उन चीज़ों की तरफ लगाया जो नोबेल थी, मतलब नोबेलिटी, सज्जनता और मनुष्यत्व से जुड़ी हुई थी, ऑनरेबल सम्माननीय थी, एंड जस्ट और न्यायोचित थी, जो न्यायोचित यानी न्याय संगत चीज़ें थी, और जो मनुष्य की मनुष्यता को प्रभावित करने वाली बातें थी और सम्मान को प्रभावित करने वाली चीज़ें थी. अपना पूरा मस्तिष्क, अपनी पूरी सोच उस तरफ कॉन्सेंट्रेट की, एकाग्र की. सोक्रेटिस देन राउंड द टाउन ऑन फुट. सुकरात पैदल ही गलियों में चले जाया करते थे. एंड टॉक टू द पीपल, और लोगों से बातचीत करते थे. द एथेनियंस बिगिन टू लुक फॉर हिज फेमिलियर फिगर. लुक फॉर माने तलाशना, ढूंढना.
एंड फेमिलियर माने परिचित, फिगर माने आकृति, इन द स्ट्रीट। यहाँ फेमिलियर फिगर इज रेफर्ड फॉर सोक्रेटिस। ये फेमिलियर फिगर जो है ये शब्द सुकरात के व्यक्तित्व के लिए प्रयोग किया गया है। स्ट्रीट माने गलियाँ, ठीक है। लोग अपनी गलियों, जो जहाँ रहता था उनमें अपने आसपास एरिया में गलियों में उस परिचित आकृति अर्थात सुकरात को ढूंढने लगे ताकि वह उनसे बात कर सके। एंड टू स्टे टू देयर फ्रेंड्स, और उनके मित्र बन सके। या दैट सोक्रेटिस, जब वो एक दूसरे को देखते थे तो कहते थे हाँ देखो ये सुकरात है, कम अलोंग, आगे आओ, एंड टॉक टू हिम, और उनसे बात करो। After some time, Socrates became famous as a teacher. As Socrates grew older, जैसे वो बड़े हुए, थोड़ा मेच्योर हुए, तो वो शिक्षक बन गए। He wandered along the roads. वो सड़कों पर, गलियों में टहलते थे। Stood in the market places, और स्थानीय बाजारों में खड़े हो जाते थे, रुक जाते थे। Talking to anyone who cared to greet him. और हर किसी से बात करते थे जो उनसे बात करना पसंद करता था। वो हर व्यक्ति जो केयर करता था उनकी बात सुनना चाहता था, उससे वो बात करने लगते थे। His listeners were often confused. उनके जो लिसनर्स थे, श्रोता थे, सुनने वाले थे, वो often मतलब प्राय confused, डाउट में आ जाते थे, संदेह में आ जाते थे। After they had argued with him or answered his question. आफ्टर दे हैड आर्ग्यूड, बहस करने के बाद और उनके प्रश्नों के जवाब देने के बाद अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते थे। क्यों? क्योंकि जो उनके प्रश्न थे वो दर्शन शास्त्र से जुड़े हुए थे और जिसका रहस्य आम व्यक्तियों को नहीं मालूम था। तो जब वो क्रॉस क्वेश्चन करते थे तो ज़्यादातर वो कंफ्यूज डाउट में आ जाते थे। तब उनके डाउट्स को कौन सॉल्व करता था? सोक्रेटिस। सोक्रेटिस टोल्ड हिज कंट्रीमैन दैट एवरीवन मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ। सोक्रेटिस ने अपने देशवासियों को सिखाया कि अपने बारे में सोचना सीखना शुरू करो, सो दैट ताकि बाय यूजिंग हिज रीज़न, अपने विवेक, मतलब द सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग, विवेक, उचित अनुचित का निर्णय, ये सोचना शुरू करो। एंड ही वुड हैव द पावर टू सी व्हाट वाज राइट। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनको ये पावर मिल जाएगी कि व्हाट वाज राइट, जस्ट, ट्रू एंड ब्यूटीफुल। रियली जो राइट है, जस्ट है, मतलब न्यायिक है, सत्य है, सुंदर है, सच्चा सौंदर्य, साहित्य और सच्चाई, सौंदर्य और उचित न्यायोचित बातें वो चेक कर सकेंगे क्योंकि उनको अपने रीज़न, अपने लॉजिक का यूज़ करना आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, दैट्स इनफ फॉर टुडे। इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल कंटिन्यू आवर द चैप्टर। टिल देन हैव अ नाइस डे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 10th में विषय हिंदी के विषय गद्य का जो लेसन है, लास्ट लेसन है, पानी में चंदा और चांद पर आदमी। इसके लेखक हैं जयप्रकाश भारती। मैं उसको आपको पढ़ाती हूँ। पहले जयप्रकाश भारती की जीवनी आपको पढ़ाऊंगी। इसके उपरांत पानी में चंदा और चांद पर आदमी, इस शीर्षक को पढ़ा। देखिए बच्चों, पहले जीवनी ध्यान से। जन्म सन 1936 ईस्वी, जन्म स्थान मेरठ उत्तर प्रदेश। पिता का नाम रघुनाथ सहाय, एडवोकेट। भाषा सरल हिंदी। इनकी रचनाएं हैं ऐसे थे मेरे बापू, हमारा देश हमारा देश, देश हमारा देश हमारा, चलो चांद पर चले, हिमालय की पुकार। इनकी मृत्यु 5 फरवरी 2005 को। जीवन परिचय में आए। प्रसिद्ध पत्रकार एवं लेखक जयप्रकाश भारती का जन्म सन 1936 ईस्वी में मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ। हिंदी की साहित्यिक शैली में मनोवैज्ञानिक लेख प्रस्तुत करने में उन्हें विशेष सफलता और ख्याति मिली। उनके पिता रघुनाथ सहाय एडवोकेट मेरठ के पुराने कांग्रेसी और समाज सेवी थे। भारती जी ने मेरठ में ही BSc तक का अध्ययन किया। उन्होंने छात्र जीवन में ही समाज सेवी संस्थाओं में भाग लेना आरंभ कर दिया था। मेरठ में साक्षरता प्रसार के कार्य में उनका उल्लेखनीय योगदान रहा।
तथा वर्षों तक उन्होंने निःशुल्क प्रौढ़ रात्रि पाठशाला संचालित की और संपादन कला विशारद जयप्रकाश भारती ने दैनिक प्रभात मेरठ तथा नवभारत टाइम्स दिल्ली में पत्रकारिता का व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया। साक्षरता निकेतन लखनऊ में नवसाक्षर साहित्य लेखन का विशेष प्रशिक्षण भी लिया। 69 वर्ष की अवस्था में लंबी बीमारी के बाद 5 फरवरी 2005 को मेरठ में इनका निधन हो गया। भाषा शैली में देखिए, जयप्रकाश भारती की भाषा अत्यंत सरल व शैली रोचक है। इनकी शैली में वर्णनात्मकता व रचनात्मकता का मेल रहता है। भारती जी के मुख्यतः वैज्ञानिक लेखों से प्रसिद्ध हुए। इनके वैज्ञानिक विषयों पर लिखे निबंधों की भाषा अत्यंत प्रभावपूर्ण खड़ी होती है। अपनी भाषा में इन्होंने साधारण भाषा के साथ बोलचाल की व्यवहारिक भाषा उर्दू, फारसी, मुहावरों, कहावतों आदि का उपयोग किया है। इनकी प्रमुख रचनाओं में आए, पहले देखें, भारती जी का निबंध है पानी में चंदा और चांद पर आगे। वैज्ञानिक विषय पर लिखा गया निबंध है जिसमें इन्होंने अपनी सभी खूबियों का प्रमाण दिया है। इन्होंने पृथ्वी से चंद्रमा तक की दूरी, चंद्रयान आदि सभी विषयों का विस्तृत वर्णन किया है। आपने अपनी प्रतिभा के बल पर आधुनिक साहित्यकारों का भी पर्याप्त मार्गदर्शन किया है। इनकी प्रमुख रचनाएं देखिए, जिसमें हिमालय की पुकार, अनंत आकाश, अथाह सागर, यूनेस्को द्वारा विज्ञान की विभूतियां, चलो चांद पर चले, भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत। इनकी अन्य प्रकाशित पुस्तकें हैं सरदार भगत सिंह, हमारे गौरव की प्रतीक, बर्फ की गुड़िया और अस्त्र शस्त्र आधुनिक युग से अणुयुग तक। उनका बचपन यूं बीता, ऐसे थे हमारे बापू, लोकमान्य तिलक, बर्फ की गुड़िया, संयुक्त राष्ट्र संघ, भारत का संविधान, दुनिया रंग बिरंगी, हीरों का हार आदि। ये लगभग 100 से अधिक किरणमाला इनकी कहानियां, रिपोर्टाज सभी प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं। बच्चों, जयप्रकाश भारती की जीवनी आप अपनी क्लास वर्क की कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आपको महत्वपूर्ण बिंदु लिखना है और जीवन परिचय लिखना है। इसके बाद भाषा शैली के बाद रचना है और हिंदी जगत में स्थान लिखें अथवा न लिखें, कोई खास बात नहीं है। अब पाठ में आते हैं। देखिए, ध्यान से सुनेंगे और पीछे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर आप अपनी होमवर्क कॉपी में लिखेंगे। दुनिया के सभी भागों में स्त्री, पुरुष और बच्चे रेडियो से कान सटाए बैठे थे। जिनके पास टेलीविजन थे वे उसके पर्दे पर आंखें गड़ाए थे। मानवता के संपूर्ण इतिहास की सर्वाधिक रोचक रोमांचक घटना के एक एक क्षण के वे भागीदार बन रहे थे। उत्सुकता और कौतूहल के कारण अपने अस्तित्व से ही बिल्कुल बेखबर हो गए थे। युग युग से किस देश और जाति ने चंद्रमा तक पहुंचने के सपने नहीं संजोए। आज इस धरा के ही दो मानव सपनों को सच कर दिखाने के लिए कृत संकल्प थे। बच्चों, इस पैराग्राफ में दो मानव जो वैसे प्राचीन काल से ही मनुष्य ये कल्पना करता रहा है कि चंद्रमा पर भी क्या पहुंचा जा सकता है, तो आज सभी का ये सपना सच होने वाला था। और ये ऐसे ही दो महामानव थे जो चंद्रमा पर जाने के लिए उत्सुक थे। सोमवार 11 जुलाई 1969 के बहुत सवेरे ईगल नामक चंद्रयान नील आर्मस्ट्रांग और एडवन एल्ड्रिन को लेकर चंद्र तल पर उतर गए। चंद्रयान मूल में धूल उड़ाता हुआ चंद्रमा के जल विहीन शांति सागर में उतरा। भारतीय समय के अनुसार 1:47 तक किसी अन्य ग्रह पर मानव पहली बार पहुंचा। असीम अंतरिक्ष को चीरते हुए पृथ्वी से 4 लाख किलोमीटर दूर चंद्रमा पर पहुंचने में मानव को 102 घंटे 45 मिनट और 42 सेकंड का समय लगा। अपोलो 11 को केप केनेडी के से बुधवार 16 जुलाई 1969 को छोड़ा गया था। इसमें 3 यात्री थे बच्चों। पहला कमांडर नील आर्मस्ट्रांग, माइकल कॉलिंस और एडवन एल्ड्रिन। चंद्रमा की कक्षा में चंद्रयान मूलयान कोलंबिया से अलग हो गया।
फिर चंद्र तल पर उतर गया। उस समय माइकल कॉलिंस मूलयान में 96 किलोमीटर की ऊंचाई पर निरंतर चंद्रमा की परिक्रमा कर रहे थे। नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्र तल से पृथ्वी का वर्णन करते हुए कहा, ये बहुत बड़ी है, चमकीली और सुंदर है, बिग ब्राइट एंड ब्यूटीफुल दिखाई दे रही है। एडविन ने भाव विभोर होकर कहा, सुंदर दृश्य है, सब कुछ सुंदर है। उसने कहा कि जहां हम उतरे हैं उससे कुछ ही दूरी पर हमने बैंगनी रंग की चट्टानें देखी। चंद्रमा की मिट्टी और चट्टानें सूर्य की रोशनी में चमक रही थीं, जबकि वो बैंगनी रंग की नहीं थी। यह एक भव्य एकांत स्थान है। चंद्रयान ठीक स्थिति में है। यह निरीक्षण करके कुछ खा पीकर और सुस्ता लेने के बाद नील आर्मस्ट्रांग चंद्रयान से बाहर निकले। चंद्रयान की सीढ़ियों से धीरे धीरे वह नीचे उतरे। उन्होंने अपना बायां पांव चंद्र तल पर रखा, जबकि दायां पांव चंद्रयान पर ही रहा। इस बीच आर्मस्ट्रांग दोनों हाथों से चंद्रयान को अच्छी तरह पकड़े रहे। उन्हें यह तय कर लेना था कि वैज्ञानिक चंद्र तल को जैसा समझते हैं वह उससे एकदम भिन्न तो नहीं। आश्वस्त होने के बाद वह यान के आसपास ही कुछ ही कदम चले। चंद्रमा पर पांव रखते हुए उन्होंने कहा, यद्यपि यह मानव का छोटा सा कदम है, लेकिन मानवता के लिए बहुत ऊंची छलांग है। कहने का तात्पर्य है, मनुष्य सदियों से यही सोचता रहा कि क्या कभी वो चंद्रमा पर पहुंच पाएगा, लेकिन उनका ये सपना सफल हो गया। अभी तक एल्विन भले ही भीतर बैठा हो, लेकिन वह निष्क्रिय नहीं था। उसने मूवी कैमरे से आर्मस्ट्रांग के चित्र लेने शुरू कर दिए। 20 मिनट बाद ही एडविन एलन भी चंद्रयान के बाहर निकले। उन्होंने भी चंद्र तल पर चलकर देखा। तब तक आर्मस्ट्रांग चंद्र धूल का एक तात्कालिक नमूना जेब में रख चुके थे। अब उन्होंने टेलीविजन कैमरे को त्रिपाद पर जमा दिया। अरबों डॉलर खर्च करके मानव चंद्र तल पर पहुंचा था। उसे अपने सीमित समय में एक एक क्षण का उपयोग करना था। दोनों चंद्र विजेताओं को चंद्रमा की चट्टानों तथा मिट्टी के नमूने लेने थे। कई तरह के उपकरण भी वहां स्थापित करने थे, जो बाद में ये पृथ्वी पर वैज्ञानिक जानकारी भेजते रहे। इन चंद्र विजेताओं ने चंद्र तल पर भूकंप मापी यंत्र स्थापित किया और लेसर परावर्तक रखा। इन्होंने एक धातु फलक, जिन पर तीनों यात्रियों और अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन के हस्ताक्षर वहां रखा। धातु फलक पर खुदे शब्दों का आर्मस्ट्रांग ने जोर से पढ़ा। जुलाई 1969 में पृथ्वी ग्रह के मानव चंद्रमा के इस स्थान पर उतरे। हम यहाँ सारी मानव जाति के लिए शांति की कामना लेकर आए। दोनों चंद्र यात्रियों ने अमेरिकी ध्वज चंद्र तल पर फहरा दिया। वायु न होने के कारण इस ध्वज को इस तरह से बनाया गया था कि स्प्रिंग की सहायता से वह फैला हुआ ही रहे। विभिन्न राष्ट्र ध्वजों के संदेशों की माइक्रोफिल्म भी उन्होंने चंद्र तल पर छोड़ दी। 2 रूसी अंतरिक्ष यात्री बच्चों कौन थे? यूरी गागरिन और M.K. मोरोव को मरणोपरांत दिए गए पदक और 3 अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों ग्रिशम, व्हाइट और सैफी को दिए गए पदकों की अनुकृतियां वहां रखी। अपने व्यस्त कार्यक्रम को पूरा करने में चंद्र यात्रियों को थकान हो जाना स्वाभाविक था, लेकिन फिर भी वे बड़े प्रसन्न थे। आरंभ में वे बड़ी सावधानी के साथ एक एक कदम रख रहे थे, लेकिन बाद में वे कंगारुओं की तरह उछल उछल कर चलने लगे। ऐसा क्यों? क्योंकि वो अब उन्हें ये पता चल गया था कि यहाँ पर कोई हमें नुकसान नहीं हो सकता। मानव को चंद्रमा पर उतारने का ऐसा प्रथम प्रयास होते हुए भी असाधारण रूप से सफल रहा। यद्यपि हर क्षण हर पग पर खतरे थे। चंद्र तल पर मानव के पांव के निशान उसके द्वारा वैज्ञानिक तथा तकनीकी क्षेत्र में की हुई असाधारण प्रगति के प्रतीक। जिस क्षण डगमग करते मानव के पग धूल दूसरी अंशी सतह पर पड़े तो मानव हजारों लाखों वर्ष से पालित कोशिश सैकड़ों अंधविश्वासों तथा खगोल कल्पनाओं पर पद प्रहार ही हुआ। कवियों की कल्पना के सलोने चांद को वैज्ञानिकों ने बदसूरत और जीवनहीन करार दे दिया। भला चंद्रमुखी कहलाना किसे रुचकर लगेगा।
हमारे देश में ही नहीं, संसार की प्रत्येक जाति ने अपनी भाषा में चंद्रमा के बारे में कहानियां गढ़ी हैं और कवियों ने कविताएं रची हैं। किसी ने उसे रजनीपति माना है तो किसी ने उसे रात्रि की देवी कहकर पुकारा। किसी गृहिणी ने उसे अपना दूत बनाया तो किसी ने उसके पीलेपन से चित होकर उसे बूढ़ा और बीमार ही समझ लिया। बालक श्री राम चंद्रमा को खिलौना समझकर उसके लिए मचलते हैं तो सूर के श्री कृष्ण भी उसके लिए हट करते हैं। बालक को शांत करने के लिए एक ही उपाय था, चंद्रमा की छवि को पानी में, यानी जब बालक श्री कृष्ण माता यशोदा से भैया मैं तो चंद्र खिलौना ले इस तरह मचलते थे तो माताएं परात में पानी भर करके और आंगन में रख देती थी। तो चंद्रमा का प्रतिबिंब उस परात में पड़ता था और बच्चों को वो इस तरह से शांत कर लेती थी। लेकिन मानव की प्रगति का चक्र कितना घूम गया। इस लंबी विकास यात्रा को श्रीमती महादेवी वर्मा ने एक ही वाक्य में बांध दिया। पहले पानी में चंदा को उतारा जाता था और आज चांद पर आदमी पहुंच गया। यानी आज के युग में वैज्ञानिक प्रगति कितनी अधिक हो गई है कि मनुष्य कभी सोचा भी नहीं था कि कभी हम चंद्रमा पर पैर रखेंगे, लेकिन वो चंद्रमा पर गए। पहले इन बच्चों को राम हो चाहे कृष्ण हो और भी बच्चों जब ये जिद करते थे अपनी माताओं से तो माताएं परात में पानी भरकर चंद्रमा के प्रतिबिंब को दिखाती थीं। लेकिन आज महादेवी वर्मा ने जो कहा है कि पहले पानी में चांद को उतारा जाता था और चांद पर आज आदमी पहुंच गया। मानव मन सदा से ही अज्ञात के रहस्यों को खोलने और जानने समझने को उत्सुक रहा। जहाँ तक वह नहीं पहुँच सकता वहाँ एक कल्पना के पंखों पर उड़कर पहुँचा। उसकी प्रगाढ़ और अविश्वासी कथाएं उसके सत्य के निकट पहुँचने में प्राण शक्ति का काम करती। अंतरिक्ष युग का प्रश्न बनता है कि अंतरिक्ष युग का सूत्रपात 4 अक्टूबर यानी कब हुआ? अंतरिक्ष युग का सूत्रपात 4 अक्टूबर 1957 को हुआ। जब सोवियत रूस में अपना पहला स्पुतनिक छोड़ा। प्रथम अंतरिक्ष यात्री बनने का गौरव यूरी गागरिन को प्राप्त हुआ। अंतरिक्ष युग के आरंभ से ही ठीक 11 वर्ष 9 मास 17 दिन बाद चंद्र तल पर मानव उतर गया। दिसंबर 1968 में पहली बार अपोलो 8 के तीनों अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा के पड़ोस तक पहुंचे। बीच की अवधि में रूस और अमेरिका दोनों ही देशों ने अनेक अंतरिक्ष यान छोड़े। इनमें कुछ समानव यान थे और कुछ मानव रहे। इसे मानव का साहस कहें या दुस्साहस कि उसने अंतरिक्ष में पहुंचकर यान से बाहर निकलकर अनंत अंतरिक्ष में विचरण शुरू कर दिया। अंतरिक्ष में परिक्रमा करते 2 यानों को चमत्कारी कर्तव्य किए गए। अपोलो 11 द्वारा चंद्र विजय से पूर्व मानव अपोलो 10 के इस नाटक का पूर्व अभिनय किया गया। उसके 3 यात्री अंतरिक्ष यान को चंद्रमा की कक्षा में ले गए। 1 यात्री मूलयान को कक्षा में घुमाता रहा और 2 यात्री चंद्रतल में बैठकर उसके चंद्रमा के केवल 9 मील की दूरी तक ले गए। इन्होंने चंद्र विजेताओं के उतरने के संभावित स्थल का अध्ययन किया और अनेक चित्र खींचे। चंद्रयान को मूलयान से जोड़ा और फिर सकुशल पृथ्वी पर लौट आए। Hello students, welcome to the online classes of SGOY. Myself Prachi Trivedi, your maths teacher. Students, in my previous class, I discussed the chapter volume. I start the chapter volume and surface area of solids. Okay, and I discussed about cuboid, cube, and cylinder. How we find the volume, curved surface area, and the total surface area of cylinder. Today we are going to discuss about hollow cylinders. Okay. Now students, solids like iron pipes, plastic pipes are the example of hollow cylinder. Okay. Yet a hollow cylinder
of external radius capital R and internal radius is small r, and height is h. Okay? External radius is capital R, small. Now students, how we find the volume of material? Volume of material. Volume of material means, because it is in a hollow cylinder, okay? Then volume of material means this part, okay? Now, if we find external volume and we find internal volume, and when we subtract it, we get volume of material. Then volume of material is equals to external volume minus internal volume. External volume is pi r square h, pi r square h, and internal pi r square, pi small r square h. Okay? Then it becomes r square minus r square h, pi r minus small r plus small r into h. This is the formula of volume of material. Okay? Now students, the next is curved surface area of hollow cylinder. Curved surface area of hollow cylinder. Student, curved surface area of hollow cylinder means, if we paint this hollow cylinder, then what will we do? We paint outside of the cylinder, and we paint inside this border, inside of the cylinder, and we paint this area also. Okay? Okay? Means, for this we find the external surface area minus internal surface area of the cylinder. External surface area means this part. For this we use the radius capital R, means external surface area minus internal surface area. For external surface area we use 2 pi r h minus 2 pi small r h. Okay? 2 pi h r minus small r. This is the formula of curved surface area of hollow cylinder. Now students, total surface area of hollow cylinder. Total surface area of hollow cylinder. Okay? For this students, in curved surface area we don't use this part. Okay? In total surface area of curved surface area of hollow cylinder plus area of this part, and actually this is the ring, and area of this means this is ring. In this case, the total surface area of cylinder, hollow cylinder, is curved surface area plus area of the base and area of top, means curved surface area plus 2 into area of base ring. Okay? Now, curved surface area is 2 pi r bracket capital R, 2 pi h.
minus small r plus 2 into area of base ring. Student, we know that area of ring is pi bracket capital R square minus small r square. Okay, capital pi capital R square minus small r square. Okay, this is the curved surface, total surface area of hollow cylinder square unit. Here students, if the value of capital R is 4 and value of small r is 3 centimeter and h is 7, then how we use the formula? In this case, the curved surface area is 2 pi means 22 by 7, h means 7, r means 4 minus 3, then 2 into 22 into 1, then 44 centimeter square. Okay, then third surface area is 44 centimeter square. Okay, now the how we find the total surface area? Then total surface area for the we use the formula which is this 2 into 22 by 7, h, the value of h is 7, r is 4 minus 3 plus 2 into 22 by 7, and here r which is 16 minus 9. Okay, now here we take common 2 into 22 by 7, then 7 plus 16 minus 9, 16 minus 9 is 7. Okay, then 2 into 22 by 7 into 88 centimeter square, the total surface area of cylinder. Okay. Now for the volume, we know that pi is 22 by 7. Volume of material is pi capital R 4 minus 3, small r 4 plus 3 into 7. Okay. Then 22 into 4 minus 3 is 1 and 4 plus 3 is 7. Then 7 to the 14, 7 to the 14, 1. Centimeter cube. The unit of volume is centimeter cube. Okay. Now students, that's all for today. We will discuss some other example of this topic in my next class. Thank you so much. Hello students, good afternoon. Myself Salim, teacher of Shivaji Constitution. I am going to explain a topic is magnetic effect of current. Today I will teach you magnetic field line. Now, what is magnetic effect of current? And explain also last video, but magnetic effect of current. I repeat and again explain it. When a current flow in a conductor, then conductor produces a magnetic field. This process is called magnetic effect of current. Now, magnetic field line. Then, what is magnetic field? Magnetic field is an area around a magnet. Around a magnet. Magnetic field is area around a magnet. It is called magnetic field. Magnetic field is represented by magnetic field line.
we can not see magnetic field. We can not see magnetic field. It is represented by magnetic field line. Magnetic field line is a field line that is representative of magnetic field. That is representative of magnetic field, and also called visually tools to use representative of magnetic field. Now I am explaining it. Let us consider a magnet which having two poles, north and south pole. Then this magnet produce a magnetic field. This magnetic field represented by some magnetic field lines. It is called magnetic field line, which travels from north pole to south pole. We can say magnetic field line goes always north pole to south pole, but its condition is outside, and magnetic field line from north pole to south pole in inside. Now and explain property of magnetic field line. We can see magnetic field line goes to north pole to south pole at outside. Now inside the magnetic field line goes to south pole to north pole. We can say magnetic field line as a closed circuit. It is closed circuit. Then outside direction is north pole to south pole, and inside direction is south pole to north pole. And what is direction of magnetic field line? North pole to south pole and outside. But what is direction of magnetic field line? Inside. Then we can say magnetic field line direction from south pole to north pole inside of magnet. Then property of magnetic field line. Property of magnetic field line we can say also called magnetic force line. Now first property, it goes from north pole to south pole. We can see it goes to our magnetic field line, or our magnetic field line goes to from north pole to south pole in outside. Second point, whenever magnetic field are close each other, whenever magnetic field line are close each other, in which the magnetic field is very strong, we can see this place magnetic field line are very far each other, but in this place magnetic field line is very close each other. We can say magnetic field is very strong, but in this place magnetic field line is very low and looser. Now third point and second point, we can say whenever magnetic field line are close each other, in which magnetic field is very strong, but whenever magnetic field line are for each other, in which the magnetic field is very looser and low. Now fourth point, magnetic field lines are never intersect each other. How? Why? Magnetic field line are never intersect each other. But why? I am explaining when this is magnetic field line and this is magnetic field line intersect each other. This point is intersect point in this place used to a compass needle.
magnetic compass, then it is not so the magnetic field direction. Why? In this point having a two direction, but it's no so the direction of magnetic field line, then it is called magnetic field lines are never intersect each other. Why are magnetic field line intersect each other? Then we can say magnetic field line are not intersect each other because when magnetic field line intersect in point, its point having a two direction, it is not possible. It is not possible. Then A points are not have a two direction. Now magnetic field line. Magnetic field line is imaginary line that is respect of magnetic field. Now property of magnetic field line, it goes from north pole to south pole. Second, whenever magnetic field are closed, in which magnetic field is very strong. Whenever magnetic field line are very far each other, in which magnetic field is very low. Now magnetic field line are never intersect each other. This point is very important. This point is very important. Magnetic field line are never intersect each other. Then why magnetic field lines are never intersect each other? We can say magnetic field lines are not intersect each other because magnetic field lines are intersect in this point. This point having a two direction. This is a impossible process. This is an impossible process. Two magnetic field lines. Magnetic field lines have not two direction. Then imaginary lines. Magnetic field lines, imaginary lines that is represent magnetic field and magnetic field direction. Now, thank you. मैंने उस पर डेमोक्रेसी क्या है अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन के साथ में क्लियर किया था, और डाइवर्सिटी क्या चीज़ है ये भी मैंने बताया था. डाइवर्सिटी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर, रिलीजन, लैंग्वेज एंड विजन. नाउ टुडेज टॉपिक इज सोशल डाइवर्सिटी. अब सोशल डाइवर्सिटी क्या चीज़ होती है, इसमें बहुत समझने की इंपॉर्टेंट है. हम इसमें तीन चीज़ें पढ़ेंगे: सोशल डाइवर्सिटी, सोशल डिफरेंसेस और सोशल डिवीजन. फर्स्टली डाइवर्सिटी में सबसे फर्स्ट जो मेन इसका जो रीजन होता है सोशल डाइवर्सिटी का, जो हमने जिसकी वजह से हमारे सोसाइटी में हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, वो होगी सबसे पहले ओरिजिन के बेस पर. जिस भी सोसाइटी में हमारा जन्म होता है ये होती है एक्सीडेंट ऑन बर्थ. एक्सीडेंट ऑफ बर्थ मतलब जिस भी सोसाइटी में हमारा बर्थ होता है एक्सीडेंट, हम वहाँ से वो हमारी डाइवर्सिटी में वो हमारी हो जाती है, वो हम उस जो है सोसाइटी के मेंबर हो जाते हैं, हम उस सोसाइटी को बिलोंग करने लगते हैं. तो ये एक्सीडेंट ऑफ बर्थ होती है. वहाँ पर कोई भी डोंट चूज कम्युनिटी, वहाँ पर हम कम्युनिटी को खुद चूज नहीं करते हैं कि हम अपनी इच्छा से, जैसे कि मान लीजिए अगर हमने किसी हिंदू फैमिली में हमारा बर्थ होता है तो वहाँ पर हम हमारी चॉइस नहीं है, ये हमारा ओरिजिन है जहाँ पर हो. ठीक है, तो फर्स्ट थिंग होगी एक्सीडेंट ऑफ बर्थ. वी डोंट चूज कम्युनिटी एंड फिजिकल एबिलिटी और डिसएबिलिटी पर भी डिपेंड करता है कि हमारी किस तरह की एबिलिटी होती है फिजिकल और जो है एबिलिटी और नॉन डिसएबिलिटी. सॉरी, जैसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, वो हो सकता है बाय बर्थ कुछ डिसेबल होते हैं, तो उसका कुछ ना कुछ असर हमें बच्चों में भी देखने को मिलता है. क्या वो बच्चा ऐसा चाहता है? नहीं चाहता ना. वहाँ पर उसकी चॉइस डिपेंड नहीं करती है. वहाँ पर क्या प्रॉब्लम होती है? उसका ओरिजिन, क्योंकि वो उस सोसाइटी को बिलोंग कर रहा है, वो उस
पेरेंट्स को बिलोंग कर रहा है, जिनकी फिजिकल एबिलिटी या डिसेबिलिटी जो भी उनमें होगी वो उनके बच्चों में जरूर दिखाई देती है। तो ये 3 चीज़ों पे बेस्ड है। तो ओरिजिन जो जिसके 3 रीजन होता है। अब सेकंड हमारी चीज होती है चॉइस। चॉइस जो होती है वो भी कई चीज़ों पर डिपेंड होती है। एक तो सोशल डाइवर्सिटी हमने ओरिजिन में देखी, दूसरा हमने देखा चॉइस में। ये वो चीज़ होती है जहाँ पर हमारे पास चॉइस होती है कुछ भी चुनने की। जैसे कि मान लीजिए अगर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया हिंदू रिलीजन का, अगर हम हिंदू रिलीजन में बर्थ करते हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो भी चेंज आर रिलीजन, हम अपने रिलीजन को चेंज भी कर सकते हैं। ये हमारी चॉइस पर डिपेंड करता है। सेकेंड चीज क्या है, हम किसी भी सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। ये हमारे चॉइस पर डिपेंड करता है, इसके लिए हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर हम हिंदू फैमिली में जन्म लेते हैं तो जरूरी नहीं है कि हम संस्कृत ही पढ़ें, हम उर्दू भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो हमारी चॉइस पर डिपेंड करता है। तो इट इज डिपेंड अपॉन चॉइस। एंड द थर्ड थिंग इज ऑक्यूपेशंस। हम कोई भी ऑक्यूपेशन जो भी हम चुनना चाहें उसको तो अगर हम किसी ऑक्यूपेशन को चुनते हैं तो हम उस ऑक्यूपेशन की सोसाइटी को भी बिलोंग करते हैं। इज इट क्लियर? ये मैंने यहाँ बताने का मतलब ये है कि किस तरीके से हम अपनी चॉइस से जिन चीज़ों को चुनते हैं उससे हम उन सोसाइटीज को बिलोंग करने लगते हैं। यहाँ पर ये बताने का मतलब है। तो ये सारी चीज़ें बहुत बहुत मायने रखती हैं कि हम किस सोसाइटी को बिलोंग कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो प्रेशराइज होती हैं, जो ओरिजिन से मिलती हैं, एक्सीडेंट ऑफ बर्थ से मिलती है, और कुछ ऐसे जो है सोसाइटीज होती है, कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनको हम अपनी चॉइस से हम उन्हें खुद चूज करते हैं और उनको हम मेंबर्स हो जाते हैं। इज इट क्लियर? तो ये हमारा था सोशल डाइवर्सिटी। पर कभी कभी यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल और देंगे, जो मैंने रीजन नॉर्मल का एग्जाम्पल आपको दिया था, कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम अलग अलग सोसाइटी के होने के बावजूद, जैसे कि टॉमस स्मिथ और जॉन कार्लोस एफ्रो अमेरिकन थे और जो हमारे पीटर नॉर्मन थे वो एक ऑस्ट्रेलियन एथलीट थे, उसके बावजूद भी वो दोनों रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के व्यू पर के अगेंस्ट थे, दोनों ही इसके अगेंस्ट थे। तो क्या हुआ, अलग अलग सोसाइटी के होने के बावजूद उनकी जो सब्जेक्ट्स थे या उनका जो एक कहते नहीं है व्यू था किसी भी चीज को लेकर, वो उनका एक था। तो यहाँ पर हम ये एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो ये हो गई हमारी सोशल डाइवर्सिटी। एंड नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सोशल डिफरेंसेस। अब सोशल डिफरेंसेस जो कि हमने आपको पहले भी बताया था, डिफरेंस जो होता है सोशल का, सोशल डिफरेंसेस डिपेंड्स अपॉन color, caste, language, religion, ठीक है, और रीजन, अलग अलग रीजन। तो ये इस पर डिपेंड करता है हमारा सोशल डिफरेंस कि हम किस कास्ट के हैं, किस कलर के हैं, कौन सी लैंग्वेज को होते हैं। तो ये सारे बेस्ड होते हैं जिससे हमारा जो सोशल हमारा जो सोसाइटी है उसमें डिफरेंस आता है, वो अंतर आता है, अलग अलग होती है। जैसे एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेके चलेंगे बेल्जियम का। इन फर्स्ट चैप्टर बेल्जियम में क्या था कि बेल्जियम में हमारा बेल्जियम जो था वो 2 पार्ट में डिवाइड था। तो फर्स्ट में क्या थे, यहाँ पर जो डच स्पीकर्स थे, जो डच बोलते थे वो 60% थे, ठीक है, और जो फ्रेंच स्पीकर्स थे वो 40% थे। फर्स्ट चैप्टर हमारा था पावर शेयरिंग, उसमें हमने डच और फ्रेंच इन दोनों के बारे में पढ़ा था। और इन दोनों में तो ये जो हमारे यहाँ ये जो सोशल डिफरेंस हमने देखा डच का और फ्रेंच का, वो किस पे बेस्ड हो गया, लैंग्वेज पे बेस्ड हो गया। तो इस तरीके से हमें सोसाइटी में डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो ये क्लियर हुआ कि व्हाट इज सोशल डिफरेंसेस। अब सोशल डिफरेंस, व्हेन सोशल डिफरेंस बिकम्स सोशल डिवीजन, वेरी इंपॉर्टेंट कि एक सोशल डिफरेंस जो होता है वो सोशल डिवीजन में कब बदल जाता है। कैसे हमारे जो सोसाइटी है उसमें जो डिफरेंस है वो तो है, बट उसमें डिविजन्स कैसे होने शुरू हो जाते हैं। डिवीजन क्या चीज होती है? डिवीजन वो होती है जब एक से ज्यादा जो डिफरेंसेस होते हैं वो टुगेदर हो जाते हैं, एक साथ आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल लेंगे, ये हम पढ़ रहे हैं सोशल डिवीजन। सोशल डिवीजन में क्या होता है, जब वन और मोर सोशल डिफरेंसेस टुगेदर आ जाते हैं, ठीक है। जैसे हमने एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे रब करके दोबारा से इसको समझाती हूँ। देखिए
I will clear the social division. Like मैं ब्लैक और व्हाइट का एग्जांपल लेके चल रही हूँ यहाँ पर। हमने ब्लैक और व्हाइट पढ़ा जो कि एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था अमेरिका में ब्लैक और व्हाइट के बीच में। तो ये जो ब्लैक और व्हाइट के बीच में डिफरेंस था वो कलर के बेस पे सोशल डिफरेंस था। बट अब हम ये कह रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि सोशल डिवीजन क्या होता है। सोशल डिवीजन होता है जब इसमें और डिफरेंसेस जुड़ते चले जाते हैं। लाइक जैसे ब्लैक जो थे वो पुअर थे फर्स्ट चीज, ठीक है, तो ये एक डिवीजन हुआ। सेकंड नंबर पे क्या थे, वो लैंडलेस थे, उनके पास लैंड्स नहीं थे बिल्कुल भी। और थर्ड डिफरेंस क्या था कि वो बहुत ही माइनर थे, मतलब माइनॉरिटी थी उनकी। तो ये सोशल डिवीजन का रीजन था। ऐसे जो व्हाइट थे वो रिच थे, उनके पास लैंड्स थी बहुत सारी, और थर्ड था वो मेजॉरिटी थी उनकी। तो आपने देखा किस तरह से एक सोशल डिफरेंस जो है वो सोशल डिवीजन में चेंज हो जाता है। तो सोशल डाइवर्सिटी ओरिजिन ऑफ चॉइस पर डिपेंड करती है। सोशल डिफरेंस जो है वो कास्ट, रिलीजन, कास्ट और आपका रीजन एंड लैंग्वेज, कलर, जेंडर, क्रीड, इन सब पर डिपेंड करता है। और जो सोशल डिवीजन है वो जब बहुत सारे सोशल डिफरेंसेस आपस में एक हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो वो सोशल डिवीजन का रीजन बन जाते हैं। और जो सोशल डिवीजन होता है वो बहुत सारे डिस्प्यूट्स का कारण बन जाती है, क्योंकि जब तक सोशल डिफरेंस होता है तब तक सोसाइटी में कोई भी लड़ाई झगड़ा या ये सब कुछ नहीं हो पाता। लेकिन जैसे ही सोशल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है तो उसमें डिस्प्यूट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। नाउ ऑल अबाउट फॉर टुडे। और कल हम इसी में ही बहुत इंपॉर्टेंट एक और टॉपिक है, मैं कल इसको समझाऊंगी आपको, ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग। ये दोनों भी सोशल डिफरेंस और सोशल डिवीजन पर ही बेस्ड थे। शॉर्ट में बताती चलो, ओवरलैपिंग होती है ये जब सोशल डिफरेंस में एक करके एक के बाद एक कई जो है वो क्या जुड़ते चले जाते हैं, डिविजन्स जुड़ते चले जाते हैं, तो वो ओवरलैपिंग हो जाता है, क्योंकि ओवरलैप होता चला जा रहा है कोई भी चीज। और क्रॉस कटिंग होता है जब सिर्फ ब्लैक और व्हाइट दो के बीच में डिफरेंस होते हैं। क्रॉस कटिंग का एक एग्जांपल मैं आपको और दूंगी, ये है हमारा नदर्न आयरलैंड का। इन नदर्न आयरलैंड वहां पर दो क्रिश्चियन सोसाइटीज थी। फर्स्ट जो थे वो कैथोलिक्स थे और जो सेकंड थे वो प्रोटेस्टेंट्स थे, वो प्रोटेस्टेंट थे, ठीक है। तो जो प्रोटेस्टेंट थे वो 53% थे और जो कैथोलिक्स थे वो 44% थे वहां पर। तो इस तरीके से ये जो आपको डिवीजन या डिफरेंस देखने को मिल रहा है वो हमारा क्रॉस कटिंग डिफरेंस हो जाता है। और ओवरलैपिंग होता है जब इसी में ही जो है हमारे जो डिफरेंसेस हैं वो उसी में ऐड होते चले जाते हैं और वो सोशल डिवीजन का कारण बन जाते हैं, ठीक है। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। Topic is origin of life. So what is origin of life? Complexity developed over a long period of time. As you all know, अभी तक हम लोग ने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं, evolution के बारे में पढ़ा, variations के बारे में पढ़ा, genetic drift के बारे में पढ़ा, तो हम लोग को ये पता चला कि जो complexity develop हुई है, simple चीजों से complex form में जो transformation हुआ है, ये ऐसे नहीं कि एक दिन में ये transformation हो गया, ये transformation में एक long period of time लगा हुआ है और इस long period of time में complexity develop हुई है और इस वजह से आज इतने complex form के organisms environment में present हैं। तो इस चीज को explain करने के लिए, origin of life को explain करने के लिए theory थी JBS Haldane ने। इनकी theory के according life developed from simple inorganic molecules at the time of its birth. Temperature was very high, gases like methane, CO2, NH3, H2S and water vapor, these all gases are present in abundance. But free oxygen, which is very important for the survival of living organism, is absent. Therefore, these simple molecules interacted with each other and form simple organic compounds like glucose, amino acids, nucleotides and fatty acids, etc. And interaction of these molecules give birth to first living cell on the earth, and this whole process is known as biochemical synthesis or biochemical origin of life. तो हमें ये तो पता चल गया कि बहुत लंबे टाइम के बाद कॉम्प्लेक्सिटी डेवलप हो पाई, बट ये डेवलप कहाँ से हुई? क्योंकि आज जो हमें फॉर्म देख रहे हैं लाइफ
ऑक्सीजन वो तो प्रेजेंट ही नहीं था, फ्री ऑक्सीजन इज एब्सेंट। तो अब क्या हुआ, जो हमारे पास ये गैसेस है, जो सिंपल मॉलिक्यूल्स है, इन्होंने आपस में इंटरैक्ट किया और इनके इंटरैक्शन से, सिंपल मॉलिक्यूल्स के इंटरैक्शन से, सिंपल मॉलिक्यूल्स की इंटरैक्शन से फॉर्मेशन हुआ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, सिंपल मॉलिक्यूल्स हमारे पास थे मीथेन, CO2, NH3, H2S एंड वाटर वेपर। टेम्परेचर हाई था, इस वजह से इन लोगों के बीच में इंटरेक्शन और इंटरेक्शन से हमें सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिले। वो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, फैटी एसिड्स एंड सो ऑन। अब जब ये सब चीजों का इंटरेक्शन हुआ, इन सिंपल मॉलिक्यूल्स के इंटरेक्शन से सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन गए, जो कि हमारे पास ये प्रेजेंट है। आफ्टर दैट इन सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का इंटरेक्शन हुआ, जब सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड दैट मींस ग्लूकोज, एमिनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड, फैटी एसिड, इन सब ने जब आपस में इंटरेक्शन किया, तब फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट living cell on the earth. And as you all know that all living organisms are composed of cells. Cell is the basic structure and functional unit of life. तो life के formation में जो सबसे छोटी चीज present हो सकती है वो cell ही है, और cell का formation जब तक नहीं होगा तब तक life का formation possible नहीं है। तो life को form करने के लिए cell का formation important है। cell का formation हो पाया simple ऑर्गेनिक कंपाउंड से। इसी पूरे प्रोसेस को बोला जाता है बायोकेमिकल सिंथेसिस या फिर बायोकेमिकल ऑरिजिन ऑफ लाइफ। बहुत सिंपल सी चीज है, कॉम्प्लेक्सिटी डेवलप हुई लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में। कॉम्प्लेक्सिटी के लिए एक एग्जांपल दिया जेबीएस हाल्डेन ने, जिसमें उन्होंने बताया लाइफ सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से डेवलप हुई है। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हमारे पास थे वो थे मीथेन, CO2, NH3, H2S एंड वाटर वेपर। इन सब ने जब कंबाइंड होकर इंटरैक्ट किया हाई टेम्परेचर में, तब फॉर्मेशन हुआ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पास है ग्लूकोज, एमिनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड, फैटी एसिड। एंड जब इन सारे सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड ने आपस में इंटरैक्शन किया, जब इन मॉलिक्यूल्स का इंटरैक्शन हुआ, तब उससे फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट लिविंग सेल का। एंड एज यू नो लिविंग सेल यूनिट ऑफ लाइफ है, लिविंग सेल से सारी लाइफ जो वो ओरिजिन हो पाई। So students, now I am going to give you a proof for this experiment which was performed by Halden. So, as you all know that Halden performed an experiment in which he told us about origin of life. But this experiment was proved by Stanley L. Miller and Harold C. Urey in his own lab in 1953. In this experiment, what they do? They develop an atmosphere similar to present on early Earth. That means which contains gases like hydrogen, ammonia, methane, CO2, hydrogen sulfide, water vapor, and also no oxygen was present in that environment or in that atmosphere. And there they maintained a temperature below 200 degrees Celsius. After that, the sparks were passed through the mixture of gases to stimulate lightning. And as a result, at the end of a week, they observed that 15% carbon from methane is converted into simple compounds. So students, मैंने आपको एक थ्योरी बताई, एक एक्सपेरिमेंट बताया ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए, जिस पे जेबीएस हाल्डेन ने वर्क किया था। इसको प्रूव किया गया 1953 में। प्रूव किया किसने? स्टैनली एल मिलर ने एंड हैरोल्ड सी उरे ने। इन दोनों ने अपनी लेबोरेटरी में एक एक्सपेरिमेंट किया और जो चीज हाल्डेन ने बोली थी उसको इन्होंने एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश की। इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया? इन्होंने सेम एनवायरनमेंट डेवलप किया जो कि अर्थ पे पहले प्रेजेंट था। दैट मींस वो एनवायरनमेंट जिसमें कि कुछ सिंपल कंपाउंड्स थे और ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था। तो इस एनवायरनमेंट में उन्होंने कुछ गैसेस रखी लाइक हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन, CO2, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड वाटर वेपर, जिनके बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि ओरिजिन ऑफ लाइफ में यही चीजें थी। एंड आई टोल्ड यू कि ओरिजिन ऑफ लाइफ जब हुआ स्टार्टिंग में, जब अर्थ था उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था। तो इन्होंने सेम वही एनवायरनमेंट डेवलप किया कि ये सारी गैसेस को तो रखा पर वहां पे ऑक्सीजन को एब्सेंट रखा, उस एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन को प्रेजेंट नहीं किया। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई था। वही चीज इन्होंने यहाँ डेवलप की, यहाँ पे टेम्परेचर रखा इन्होंने बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। अब इस टेम्परेचर के साथ और इन चीजों के साथ वो
मिक्सचर ऑफ गैसेस से, ताकि वहाँ पे लाइटनिंग हो सके, लाइटनिंग स्टिमुलेट हो सके। पूरा एनवायरनमेंट वैसे सेट करने के बाद लाइटनिंग को पास किया गया, वैसे स्पार्क्स किए गए। जब स्पार्क्स को किया गया, एनवायरनमेंट से वैसे मेंटेन रखा गया, तो ये प्रोसेस चलता रहा। एंड आफ्टर 1 वीक, 1 वीक के बाद उनको उसका रिजल्ट मिला। रिजल्ट क्या था कि 15% कार्बन जो था वो सिंपल कंपाउंड में चेंज हो गया था। 15% कार्बन कहाँ से आया? 15% कार्बन जो मीथेन में प्रेजेंट था। मीथेन गैस यहाँ पे ली गई थी। मीथेन गैस में जो 15% कार्बन था वो कन्वर्ट हो गया सिंपल कंपाउंड में। तो ये एक्सपेरिमेंट प्रूव हो पाया कि 1 वीक में जब ये चेंजेस आ सकते हैं, दैट मीन्स कि हेल्डेन का कहना एकदम सही है। ऑलरेडी के अकॉर्डिंग अगर बोला जा रहा है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ इन सिंपल कंपाउंड से हुआ है, तो ये इसी से ही हुआ है, बिकॉज चेंजेस इनमें आ रहे थे सिमिलर उस कंडीशन में जो हेल्डेन ने बताई थी, उसी के अकॉर्डिंग ये सारे चेंजेस हो रहे थे। तो ये एक थ्योरी थी रिलेटेड टू ओरिजिन ऑफ लाइफ। थैंक यू एवरीवन।